बार फ़ोन पे बात हुई थी चंद हफ्ते पहले इनसे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जानता हूँ कि जो बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान के, उनमें से एक मौलाना फजलुरहमान है माशाअल्लाह. He says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not, according to Islamic scholars, they say that अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी खिदमत है अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह कबूल फरमाए. that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that any animal which is permitted for a Muslim to eat, animal or that birds. और मेरी तमन्ना थी और मेरे वालिदैन की तमन्ना भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस Urine and feces is tahir. It is all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be. Based on this, according to the fuqahas, birds, urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. It is pure. It is not najis. It is pure. It is not najis. वक्त मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो पेशा है वो डॉक्टर का है. Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis. It is tahir. It is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to, जो इंसानियत की खिदमत कर सकता है, जो अल्लाह की दावत देता है और कहता है कि मुसलमान हूँ. इसमें क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी ज़बान में लुकनत थी जो आम उलमा की ज़बान में नहीं है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सदर को बड़ा करो, और ये मेरे ज़बान में लुकनत है, और अल्लाह की मदद से मैं तकरीर करनी शुरू किया, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मोहब्बत डाली जो तुम्हें नाचीज़ कर सकते. हमारे जितने मुख्तलिफ मज़ाहब या फ़िरक़े हैं उसमें भी ताइल अक़ल में तुम समझ महीना महीना को, और हम जानते हैं कि अक्सर जितने भी मज़हब है, और मैं चारों अइम्मा की इज़्ज़त करता हूँ फरमाएं, और चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में मुझे इंशाअल्लाह इसका अजर दे. आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन. और उनसे मुलाकात की काफ़ी तमन्ना थी, इसीलिए मैंने कहा मुस्तफ़ी साहब से कि अगर मैं कोई रिलीजियस शख्स से मिलूँगा तो पहले इनसे मिलूँगा पाकिस्तान में. और कुछ लोग मिलने आए थे कल, मैं उन्हें पहले इनसे मिलूँगा बाकी मिलूँगा, तो तरतीब होना. to eat that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. Or any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. It is pure. It is not najis. It is pure. It is not najis. Point number one, let me tell you. According to Ibn Sina, he says that the urine of the camel and the urine of the cow, it is not najis. It is tahir. It is pure. According to the fuqahas, according to Islamic scholars, they say that any animal which is permitted for a Muslim to eat, or any bird which is permitted for a Muslim to eat, that animal or that bird's urine and feces is tahir. It is pure. It is not najis. The urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not najis. So based on this, according to the fuqahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not najis. और जैसे मैं अंदर कहा कि मेरी बहुत तमन्ना थी इनसे मिलूं, और वो आज पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इसकी वजह से. एक बार फ़ोन पे बात हुई थी
चंद हफ्ते पहले इनसे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जानता हूँ कि जो बड़े आलिम दीन पाकिस्तान के उनमें से एक मौलाना फजलुरहमान है माशाअल्लाह, और उनसे मुलाकात की काफ़ी तमन्ना थी, इसीलिए मैंने कहा मुस्तस्ना साहब से कि अगर मैं कोई रिलीजियस शख्स से मिलूँगा तो पहले इनसे मिलूँगा पाकिस्तान में और कुछ लोग मिलने आए थे कल, मैं उन्हें पहले इनसे मिलूँगा बाकी मिलूँगा, तो तरतीब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनकी खिदमत है अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह कबूल फरमाए। जैसे कि जानते हो कि मेरा मेरी स्पेशलिटी है वो एक कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुली अदियान, और सेकेंड है कि जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तहरीक है या लिखते हैं या तनकीद करते हैं, तो वो मेरी स्पेशलिटी है कि उस तनकीद का जवाब दे। तो मैं एक अलग फील्ड से हूँ, और ये दावती मैदान में मुतासर हुआ शेख अहमद दीदार से, और मेरी तमन्ना थी और मेरे वालिदैन की तमन्ना भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो पेशा है वो डॉक्टर का है, जो इंसानियत की खिदमत कर सकता। जब मैं शेख अहमद दीदार साहब से मिला, उनसे मुतासर हुआ, फिर कुरान का तर्जुमा, कुरान को और तर्जुमे से पढ़ने लगा, तो पता चला कि अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुस्सिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स बेहतर है जो लोगों को बुलाता है, जो अल्लाह की दावत देता है और कहता है कि मुसलमान हूँ। तो इससे ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के नज़दीक कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन पेशा है वो दाई का है। तो जब मुझे एक अच्छा पेशा मिला जो डॉक्टर से भी अच्छा है, तो मैं तब्दील हुआ डॉक्टर ऑफ अ बॉडी टू डॉक्टर ऑफ अ सोल। एक तबीब से जो बदन का डॉक्टर है, तबीब है, मैं कन्वर्ट हुआ रूह के तबीब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरे ज़बान में लुकनत थी, कहते स्टैमरिंग, और जब बचपन में कोई मुझे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, मैं नाम ज़ाकिर है, ये ज़बान में लुकनत थी। और एक शख्स अगर ख्वाब में सोचना चाहता है, कुछ भी सोच सकता है, ख्वाब होता है, तो ख्वाब में मैं ये सोच सकता था कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कभी ख्वाब में ये नहीं सोच सकता था कि मैं 25 लोग के सामने तकरीर करूंगा, क्योंकि लुकनत थी ज़बान में। उसके बाद अल्लाह की मदद आई, शेख दीदार से मुलाकात हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है सूरह ताहा की सूरह नंबर 20 आयत नंबर 25 से 28 में जो शुरू में कहा, और वो दुआ जो है रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और अक्सर उलमा इसकी ज़िक्र करते हैं, लेकिन मेरे लिए और लागू होता है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी ज़बान में लुकनत थी जो आम उलमा की ज़बान में नहीं है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सदर को बड़ा करो, और जो लोगों के बीच में जो दरार है, जो बैरियर है, उसे निकाल दे, और ज़बान का बैरियर भी तो मेरे डबल लागू होता है, क्योंकि मेरे ज़बान में लुकनत है। और अल्लाह की मदद से मैं तकरीर करना शुरू किया, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मोहब्बत डाली। जो तो मैं नाचीज़ हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा करोड़ों लोग जो इल्म रखते इस्लाम का उसके बारे में, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत डाली लोगों के दिल में मेरे लिए, तो ये हाज़ा बिन फज़ल रब्बिक। और पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा मोहब्बत डाल दी अल्लाह ने तो इसीलिए पाकिस्तानी से लगा हुआ। और माशाअल्लाह कई पाकिस्तान जब मैं जाता हूँ गल्फ़ कंट्री में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दुबई हो या क़तर हो या यूके हो या अमेरिका हो, तो अक्सर पाकिस्तान से मुलाकात होती है। तो मेरे फ़ोन के लिस्ट में पाकिस्तानी की तादाद सबसे ज़्यादा है नेशनलिटी में। हालांकि पाकिस्तान में आया तो बहुत पहले आया था 1991 में, 33 साल बाद अभी आया, और ये पहले बार इंशाअल्लाह जो उम्मीद है एक तकरीर के सिलसिले में। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये मोहब्बत और बढ़ाए, और मेरा मिशन हमेशा रहा कि जो अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ میرے لائف کا ایک مشن ہے. اور جو قرآن کی جو اہم آیت ہے جو میرے لیے ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی دعوتی میدان میں، وہ سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب، او اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک عبادت کریں. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے، لیکن عام طور پہ کوئی بھی غیر مسلم کے لیے استعمال کر سکتے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو، آپس میں یکسانیت کی بات کرے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ. میں ایک اسٹیپ فردر لے کے جاتا ہوں، میں یہ مسلمانوں سے بھی کر سکتے. ہمارے جتنے مختلف مذاہب یا فرقے ہیں اس میں بھی تعالیٰ کلمۃ سواء بین بینکم. اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر جتنے بھی مذہب ہے، اور میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں، 90% سے 90% سے زیادہ، یا بول سکتے ہیں 95% ان میں یکسانیت ہے. لیکن اکثر مسلمان وہ 2% یا 4% یا 5% جو اختلاف ہے ان کے اندر الجھ جاتے، اور جو یکسانیت ہے اس کو چھوڑ دیتے. تو میرے ایک لائف کا یہ بھی مشن ہے کہ جتنے مسلمان دیگر مذاہب کے، دیگر غور و فکر کے، ان کے ساتھ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، ھذا من فضل ربی، کیا میرے چاہنے والے ہر فرقے میں ماشاءاللہ جو شدت کے لوگ ہیں وہ شاید مجھ سے ناراض ہے. اللہ کی مدد ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی. اور آپ جانتے ہیں کہ جو صحابہ تھے، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے. ہم جب پڑھیں گے صحابہ کی سیرہ، ہر صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے سے سب سے زیادہ محبت کرتے. تو اللہ نے محبت میرے چاہنے والوں میں بھی ڈالی. تو جہاں میں جاتا ہوں لوگ محبت سے ملتے. کچھ ہے جو لوگ تنقید کرتے، جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی، ہر اللہ کے رسول کے لیے ایک اینیمی، ایک دشمن ہمیشہ رہیں گا، قرآن کی آیت ہے. تو جو لوگ اللہ سے کام نکالتا ہے ان کو شہرت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کے خلاف بھی ہوتے. تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو دعوتی میدان کا ایک پارٹ اینڈ پارسل حصہ ہے. لیکن میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن اور اللہ کے رسول کی بات پہ یکساں ہو اور یونائٹ ہو. اس کے اوپر ایک میں نے تقریر کی تھی، دا یونٹی ان دا مسلم امہ، میری امت میں کیسا ایک یونٹی پیدا کرے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دورہ مفید ہوگا میرے لیے خصوصاً. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑی بہت میں تقریر کر لیتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. اور چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں مجھے انشاءاللہ اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.